Hello dear student, I am Pratibha Bhagat, your course teacher of diseases of field and horticultural crops and their management part 1. Course code is APP 5311 and now today we will discuss about the diseases of tomato. In last class we had discussed about the diseases of brinjal and today we will discuss about the tomato. So let's start with the introduction. As we all know that tomato is a very important and nutritive rich vegetable grown in India over an area of 0.6 million hectare with an estimate production of 11.9 million ton productivity of tomato in India. And uh, and and tomato is a very essential product which is used in our Indian kitchen and in also in our Chhattisgarh kitchen, because it is the one of the important ingredient which is consumed by most of Indian and Chhattisgarh people. And uh, uh, with tomato we can all for with tomato we can process so many things. We make so much processing foods like ketchup and etc things. So let's start with their diseases. So in tomato there are lots of diseases like fungal, bacterial and viral diseases, but according to your syllabus we have to study about the few diseases, which is dumping off, wilt, early blight, late blight and so on. So and also tomato is grown in a wide range of climatic condition across state of Andhra Pradesh, Odisha, Karnataka, Maharashtra, West Bengal, Bihar, Gujarat, Uttar Pradesh and also in our Chhattisgarh. So here the few diseases we have to discuss in this lecture session. Let's start from the damping off. So damping off is caused by mainly Pythium aphaniodermaton, and we all know that what is damping off. In damping off uh, mostly occurs in nursery stage. In nursery stage the all seedling got rotted by or due to pathogens, and because of that rotting or seedling blighting, there is a no seedling prepared in nursery because of the damping off. So let's see the symptoms of damping off in tomato. So damping of tomato occurs in two stages, that is pre-emergence and the post-emergence phase. In the pre-emergence phase, the seedling are killed just before they reach the soil surface. Means जो seedlings होते हैं वो soil surface पे ऊपर पहुंचने से पहले ही उनमें वो मर जाते हैं, वो किल हो जाते हैं. तो इसमें क्या होता है, जो यंग रेडिकल होता है और जो प्लूम्यूल होता है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेडिकल एंड प्लूम्यूल सीड से जो निकलता है वो होता है रूट्स एंड सीडलिंग फॉर्मेशन के लिए निकलते हैं रेडिकल एंड प्लूम्यूल, जो कि अगर ये दोनों ही किल हो जाएंगे तो इस अवस्था में क्या होगा, जो अगर दोनों ही निकलने के बाद या उसमें रॉटनिंग आ जाएगी कम्प्लीटली, तो वो उससे मर जाएंगे और उससे सीडलिंग प्रिपेयर नहीं हो पाएगा. तो इसी प्री इमर्जेंस फेस में यही होता है, जो यंग रेडिकल एंड जो प्लूम्यूल होते हैं वो कम्प्लीटली रॉटनिंग आ जाती है उसमें, जिससे कि पूरा का पूरा वो मर जाते हैं. एंड देन आता है पोस्ट इमरजेंस फेज. इन पोस्ट इमरजेंस फेज there is an infection of the young and juvenile tissues of the collar at the ground level. मीन्स जो सीडलिंग्स होते हैं पोस्ट इमरजेंस फेज में क्या हो रहा है, जो ऑलरेडी सिग्नेंट मतलब यहाँ पे प्लूमूल और रेडिकल जो निकलने के बाद जो सीडलिंग तैयार होता है, उसमें जब सीडलिंग बहुत ही यंग फेज में होता है तो जो यंग स्टेज में सीडलिंग के जो जुवेनाइल टिश्यूज़ होते हैं और उनके कॉलर पे जस्ट अबव द ग्राउंड लेवल से जस्ट ऊपर पे ही उनके कॉलर रीजन में रॉटनिंग आ जाती है, इसकी वजह से सीडलिंग मर जाते हैं. तो ये दो कंडीशन होता है जिसमें कि रॉटनिंग टमाटो में आती है. और पोस्ट इमरजेंस में जो इन्फेक्टेड टिश्यूज़ होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं, वाटर सॉक पैचेस हो जाते हैं, और जो सीडलिंग्स होती है वह ऊपर से कोलैप्स हो जाती है. तो ये इसके कंडीशंस हैं इस सिम्टम्स के. मीन्स ये इसमें सिम्टम्स बनते हैं. ये दोनों ही कंडीशन में सीडलिंग्स प्रोड्यूस नहीं हो पाता, सीडलिंग तैयार नहीं हो पाता, जिससे हम नर्सरी प्रिपेयर अगर नहीं हो पाएगी तो हम टमाटर की खेती भी करने में हमें बहुत दिक्कत होगी. तो ये थी पीथियम अफेनिडर्मेटम
विच इज़ अ फंगस। मोस्टली जितने भी हमारे डैम्पिंग ऑफ है, डैम्पिंग ऑफ में पीथियम, जितने भी सॉइल स्पेशली सॉइल बोर्न फंजाइज हैं, उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है डैम्पिंग ऑफ की, स्पेशली इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप. So after symptoms we can also manage the disease by using different tactics, and they are following. First, used red seed bed. हमें ऐसे सीड बेड हमें जानते हैं कि 3 तरह के सीड बेड होते हैं, जिसमें से एक होता है रेस सीड बेड, यानी कि जो उठा हुआ रहता है ना. तो ये मोस्टली ये क्या होता है, ये हमेशा वाटर लॉक्ड एरिया में हम इस तरह के सीड बेड्स बनाते हैं, या फिर सॉइल से हम सॉइल बोर्न पैथोजेंस को भी हमें क्या है, अगर ये जो इसमें रॉटनिंग की समस्या तब आती है जब सॉइल में बहुत अधिक मात्रा में मॉइस्चर होता है. तो एक्सेस मॉइस्चर होने के कारण भी पैथोजन बहुत जल्दी सक्रिय हो जाते हैं और सीडलिंग्स को में रॉटनिंग आ जाती है, डैम्पिंग ऑफ हो जाता है. तो इस वजह से अगर हम सीड बेड है वो रेज लगाते हैं, उठा हुआ बनाते हैं, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है उसमें एक्सेस मॉइस्चर नहीं रुकेगा, वो एक्सेस मॉइस्चर बाहर की तरफ रिमूव हो जाएगा. तो इसलिए हमेशा जो सीड बेड हम तैयार करेंगे हमें उसमें रेज सीड बेड का यूज़ करना है. साथ ही साथ हमें टाइम पे हमें जो सीड बेड होते हैं इस तरह के नर्सरी में, हमें लाइट को प्रोवाइड करते रहना चाहिए और फ्रिक्वेंट इरिगेशन देना चाहिए. साथ ही साथ उन्हें एक बेहतर ड्रेनेज भी प्रोवाइड करना चाहिए ताकि उसमें डैम्पिंग ऑफ की समस्या को हम कम कर सकें. साथ ही साथ हम नर्सरी में सॉइल में ड्रेंचिंग कर सकते हैं. सॉइल में ड्रेंचिंग के लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एट द रेट 0.2% एंड बोरेक्स मिक्सचर एट द रेट 1% का यूज़ कर सकते हैं. साथ ही साथ हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सीड में भी है, सीड बोर्न पैथोफंगस भी है. तो हम सीड ट्रीटमेंट के लिए हम फंगस एक ट्राइकोडर्मा विरिडी, जो कि एक फंगस है और यह एज अ बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है. तो हम टमाटो की सीड को ट्रीट करने के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी एट द रेट 4 ग्राम पर kg ऑफ सीड का यूज़ करेंगे. इसे ट्रीट करके ही हम फील्ड में सीड की सोइंग करेंगे. साथ ही साथ हम केमिकल का भी यूज़ करते हैं, केमिकल, लेकिन हमें बहुत ही लास्ट ऑप्शन में यूज़ करना चाहिए अगर हमें डिसीज़ कंट्रोल नहीं हो रही है. तो केमिकल में हम थीरम का यूज़ करेंगे. थायरम को हमें 3 ग्राम पर kg ऑफ सीड्स के रूप में सीड को ट्रीट करना होगा और उन्हें सोइंग के लिए यूज़ करना है. सो इस तरह से हम जो प्री इमरजेंसी डैम्पिंग ऑफ है, इन दोनों मेथड से कंट्रोल करके हम उन्हें रोक सकते हैं. या फिर अगर हम ओपन कंडीशन में हमने नर्सरी लगाई है, हमने हमारी सीडलिंग ओपन कंडीशन में हमने सीडलिंग जो सीड बेड हमने तैयार किया है, तो अगर वहाँ पे क्लाउडी वेदर है, तो क्लाउडी वेदर से क्या होगा कि वो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेगा और डिसीज़ बहुत ही जल्दी सिम्टम प्रोड्यूस करना, इन्फेक्ट करेगी और स्टार्ट कर देगी अपना सिम्टम प्रोडक्शन. सो इस तरह के वेदर में हमें मेटाएलिक्सिल का भी यूज़ कर सकते हैं. मेटाएलिक्सिल एक सिस्टमिक फंजीसाइड है जो कि डिसीज़ को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करता है, सप्रेस करता है. तो हम 0.2% मेटाएलिक्सिल को यूज़ कर सकते हैं एज ए स्प्रेइंग एजेंट. सो ये था पीथियम अफेनिडर्मेटम के सिम्टम्स और उनका मैनेजमेंट. हम नेक्स्ट देखते हैं हम विल्ट. सो टमाटो में विल्ट 2 प्रकार के होते हैं. एक होता है आपका फिजेरम विल्ट एंड दूसरा होता है बैक्टीरियल विल्ट. फिजेरम विल्ट एक फंगल डिसीज़ है और बैक्टीरियल विल्ट एक बैक्टीरियल डिसीज़ है. तो फिजेरम विल्ट इज कॉज्ड बाय फिजेरम ऑक्सीस्पोरम एफ species Lycopersicki, and bacterial wilt is caused by Ralstonia solanacearum bacterium. So let's start from the Fusarium wilt. So as we all know that Fusarium wilt is a fungal disease and it is caused by the Fusarium oxysporum F species Lycopersicki. पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन सिम्टम्स के बाद हम डिफरेंट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे. सो जो इसका सिम्टम्स होता है वह इसमें भी विल्टिंग में हम सब जानते हैं कि जो प्लांट है वो हर एक अवस्था में ही उसमें विल्टिंग आ जाती है, वो मुरझा जाता है और धीरे धीरे प्लांट सूख के मर जाता है. और इस तरह के प्लांट में किसी तरह की फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग भी नहीं होती. जो फर्स्ट सिम्टम होता है डिसीज़ का, उसमें वेन लिड्स में
क्लियरिंग हो जाती है और जो लीफ पूरा का पूरा क्लोरोसिस, लीफ में क्लोरोसिस हो जाता है। यह उसका फर्स्ट सिम्टम्स है। जबकि जो यंगर लीव्स होती हैं उनमें सक्सेशन की वजह से लीव्स डाई होने लगती है और पूरा का पूरा जो प्लांट है उसमें विल्टिंग आ जाती है। विल्टिंग आने की वजह से वो कुछ दिन में अपने आप ही उसमें डेथ हो जाती है, जिससे पेटियोल्स एंड उसके लीव्स भी ड्रॉप होने लगते हैं और पूरी की तरह विल्ट हो जाते हैं। मीन्स इसका यानी कि आपका जो फर्स्ट सिम्टम्स है वो क्या हो रहा है, उसमें आप पहले आपके वेनलेट्स में क्लियरिंग आ रही है और जो लीव्स है उसमें क्लोरोसिस हो रहा है। ये इसका वेरी फर्स्ट सिम्टम्स है। और जैसे कि जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस करने लगता है तो जो यंगर लीव्स होती है उनमें सक्सेशन होने लगता है, जिससे जो पूरा का पूरा प्लांट है उसमें विल्टिंग हो जाती है और उसमें पेटियोल्स एंड लीव धीरे धीरे ड्रॉप होने लगते हैं और यह बहुत ही कुछ ही दिनों में सूख के मर जाता है। साथ ही साथ जो यंग प्लांट है उसमें जो क्लियरिंग की जो क्लियरिंग इन वेनलेट्स एंड ड्रॉपिंग ऑफ पेट्रोल जो है ये सिम्टम कंसिस्ट रहता है। और फील्ड में जो लोअर लीफ होती है वह धीरे धीरे येलो, उसमें येलो होने लगता है और लीफलेट में विल्टिंग आ जाती है, जिससे वह भी डाई हो जाता है। मतलब इसका जो सबसे कॉमन सिम्टम्स है, चाहे वो यंग प्लांट हो, यंगर लीफ हो, ओल्डर लीफ हो, क्या हो रहा है सब में आपको पहले येलोइंग आ रही है, फिर प्लांट अपने आप ड्राई होने लग रहा है, सूख जा रहा है ग्रीन अवस्था में रह के, फिर उसके बाद धीरे धीरे वह येलो में उसमें विल्टिंग होके वह डाई हो जाता है। डाई हो जाने के बाद पूरा का पूरा डेड प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। सो इस तरह से जो सिम्टम्स है वो प्लांट में शो होते हैं। साथ ही साथ जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं वो स्टंटेड हो जाती है, यानी कि उनकी हाइट रुक जाती है और वह मर जाते हैं। और जो जो वेस्कुलर सिम्टम्स होते हैं प्लांट के सिस्टम होते हैं वो वेस्कुलर सिस्टम में भी ब्राउनिंग हो जाती है। तो इस तरह से था ये फ्यूजेरियम विल्ट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह प्लांट पूरी तरह से इसमें डाई हो जा रहा है, पूरी तरह से येलो में कन्वर्ट होकर वो धीरे धीरे सूख के मर जाता है और इसमें प्लांट की हाइट भी ज़्यादा नहीं रहती। जो हम अब डिस्कस करते हैं इसके पैथोजन के बारे में। वैसे हमने फिजियरियम ऑक्सीस्पोरम के बारे में हमने इससे पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, बट ये है फिजियरियम ऑक्सीस्पोरम एफिसिफिस लाइकोपर्सिकी। तो अकॉर्डिंग टू देयर होस्ट इनमें थोड़ा ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, थोड़े बहुत ही चेंजेस रहते हैं। फिजियरियम ऑक्सीस्पोरम इस पैथोजन का जो माइसीला होता है वो वाइट टू पिंक कलर का होता है और कभी कभी इसके जो टिंज होते हैं वो पर्पल होते हैं एंड यह बहुत ही अबेंडेंट मात्रा में प्रोड्यूस होता है। साथ ही साथ जो फंगस होती है ये 3 टाइप्स के स्पोर प्रोड्यूस करती है, माइक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड क्लैमिडोस्पोर, जिसके बारे में आप कई बार स्टडी कर चुके हैं। जो माइक्रोकोनिडिया होता है वह सिंपल फ्लाइट्स में अराइज होता है और धीरे धीरे यह भी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस हो जाता है। और जो इनका शेप होता है वो होता है ओवल टू इलिप्सॉइड शेप का होता है, और या ओवल टू इलिप्सॉइड शेप के होते हैं, या फिर यह स्ट्रेट के साथ ये भी कर्व्ड भी रहते हैं। या तो स्ट्रेट ओवल बनेंगे, ओवल इलिप्सॉइड बनेंगे, या फिर लाइट कर्व्ड ओवल इलिप्सॉइड बनेंगे। साथ ही साथ जो इनकी साइज़ होती है वो 5 to 12 इंटू 2.2 to 3.5 माइक्रोमीटर होती है और माइक्रोकोनिडिया नॉन सेप्टेड होते हैं, यानी कि ये कोनियोसिटिक होते हैं। नेक्स्ट है हमारा मैक्रोकोनिडिया। मैक्रोकोनिडिया भी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है और यह कोनिडियोफोर के ब्रांच में प्रोड्यूस होता है। इसकी जो वॉल होती है वह थिन होती है और इसमें 3 से 5 सेप्टेशन पाए जाते हैं, जस्ट अपोजिट माइक्रोकोनिडिया के। इसमें माइक्रोकोनिडिया में क्या है, सेप्टेशन नहीं पाया जाता, जबकि मैक्रोकोनिडिया में सेप्टेशन है और इसमें 3 से 5 सेप्टेशन पाए जाते हैं। जिनका शेप होता है वो फ्यूशॉइड सबुलेट होता है एंड इसके दोनों ही एंड पे यह पॉइंटेड होता है, यानी कि जो मैक्रोकोनिडिया होगा उसकी बोथ एंड पे यह पॉइंटेड होता है और इनमें एक पेडिसिलेट बेस होता है। नेक्स्ट है आपका कोनिडिया। जो कोनिडिया होते हैं ये 3 सेप्टेड होते हैं और इनका जो साइज़ है 27 to 46 इंटू 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। अगर इसमें 5 सेप्टेशन वाले कोनिडिया होंगे तो उनका साइज़ होगा 35 to 60 इंटू 3 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये था कोनिडिया का शेप। अगर 3 सेप्टेड होंगे तो उनका साइज इतना होगा और
5 सेप्टेशन होंगे तो उनका साइज इतना होगा, यानी कि ये माइक्रोकोनिडिया का ही शेप के बारे में डिस्कस कर रहा है। सो मोस्टली इसमें जो कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं माइक्रोकोनिडिया, वो हमेशा 3 सेप्टेड ही मोस्टली जो सबसे कॉमन होते हैं। कभी कभी यहाँ इसमें 5 सेप्टेशन भी देखा जाता है, पर मोस्टली इसमें 3 सेप्टेशन ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेडोस्पोर। जो क्लाइमेडोस्पोर होता है वो स्मूथ एंड रफ वॉल दोनों का ही बना होता है, और यह भी बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होता है। एंड ये ये मोस्टली सॉलिटरी होते हैं, बट कभी कभी ये पेयर्स और चेन्स में भी पाए जाते हैं, और इसमें कोई भी परफेक्ट स्टेज नहीं पाया जाता। सो ये था इस डिसीज़ का पैथोजन। अब आप देख सकते हैं, ये है इसका माइसीलियम, ये है इसकी माइक्रोकोनिडिया, ये है आपका मैक्रोकोनिडिया या कोनिडिया, और ये है आपके क्लाइमेडोस्पोर। ये आप देख सकते हैं, ये इसका क्लाइमेडोस्पोर है। सो इस तरह से ये डिसीज़ आप देख सकते हैं कि इसमें आपका माइसीलियम है, मैक्रोकोनिडिया, मैक्रोकोनिडिया एंड क्लाइमेडोस्पोर, जो 4th इमेज है। तो ये था पैथोजन का स्ट्रक्चर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीज साइकिल। फिजिरम विल्ट का एक फेवरेबल कंडीशन होता है, वो होता है उसका वार्म वेदर, यानी कि ये डिसीज़ वार्म वेदर डिसीज़ है, और सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट यह एसिड एंड सैंडी सॉइल्स में होती है। यह पैथोजन जो होता है वो सॉइल बॉर्न होता है, एंड सॉइल पे यह कम से कम 10 साल तक यह सर्वाइव कर सकता है विदाउट एनी होस्ट। सो इस पैथोजन का जो मोस्ट प्राइमरी इन्फेक्शन है वो सीड्स के द्वारा होता है, टमाटो स्टॉक के द्वारा होता है, सॉइल और इन्फेक्टेड ट्रांसप्लांट्स और इन्फेक्टेड सॉइल के द्वारा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसका जो प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है वो सीड बॉर्न एंड सॉइल बॉर्न है। एंड ऑल्सो द पैथोजन कुड बी डिसेमिनेट लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू सीड एंड ट्रांसप्लांट, मतलब ट्रांसप्लांटिंग के थ्रू भी बहुत दूर तक ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि अगर हम ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट को यूज़ ट्रांसप्लांटिंग के लिए डिफरेंट एरिया में भेजते हैं तो वहाँ भी इन्फेक्टेड प्लांट ही प्रोड्यूस होंगे। साथ ही साथ जो इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन है वह विंडबॉर्न, वाटरबॉर्न या फिर फार्म मशीनरी के थ्रू होता है। तो यह इस डिसीज़ का प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है आपका बाय सीड बॉर्न और बाय सॉइल बॉर्न, एंड द सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है विंडबॉर्न, वाटरबॉर्न एंड द फार्म मशीनरीज, बाय द फार्म मशीनरीज। सो नेक्स्ट विल सी मैनेजमेंट। सो डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हम डिफरेंट टैक्टिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम अफेक्टेड प्लांट को हमें फील्ड से रिमूव करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और उन्हें रिमूव कर देना चाहिए ताकि फील्ड में वह वाटर या फिर विंड के थ्रू स्प्रेड ना हो सके। अगर वह फील्ड पहले हेल्दी थी बट हमें कोई इस तरह का इन्फेक्टेड प्लांट मिल रहा है तो हमें उसे रिमूव करके डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। साथ ही साथ हम उस एरिया में स्पॉट ड्रेंचिंग करनी होगी ताकि वह सॉइल में वह जो पैथोजन है वो ज़्यादा लंबे समय तक सर्वाइव ना कर सके। तो उस स्पॉट में सॉइल में ड्रेंचिंग करने के लिए हम कार्बेंडाजिम का यूज़ करेंगे। कार्बेंडाजिम का जो अमाउंट रहेगा वह रहेगा 0.1%। सो इस तरह से हम क्रॉप रोटेशन, इसके साथ साथ हम क्रॉप रोटेशन भी कर सकते हैं, और क्रॉप रोटेशन के लिए हमें नॉन होस्ट क्रॉप का यूज़ करना है, जैसे कि सीडल्स क्रॉप का। हमें सोलेनम फैमिली की किसी भी सोलेनेसी फैमिली की किसी भी होस्ट का यूज़ नहीं करना, हमें सीरियल्स पल्सेस के साथ ही हमें इसकी क्रॉप रोटेशन को करना होगा। साथ ही साथ हम जो इन्फेक्टेड सॉइल होते हैं उन्हें स्टीम के थ्रू पास्चराइजेशन कर सकते हैं ताकि उसमें जो पैथोजन है वह सर्वाइव ना कर सके, वह डेथ हो जाए। या फिर हम उसमें फ्यूमिगेशन भी कर सकते हैं, या फिर हम सॉइल का pH 6 to 5 से 7.0 के बीच में रख सकते हैं, क्योंकि इस pH पे यह पैथोजन सर्वाइव नहीं कर सकता। साथ ही साथ हमें नाइट्रोजन की जगह पे हमें अमोनियम नाइट्रोजन को फील्ड में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट इंसिडेंस पैथोजन के ग्रोथ को रिड्यूस करता है, और जिससे जो इंसिडेंस होते हैं विल्ट प्लांट के इंसिडेंस को बहुत ही रिड्यूस कर देता है, और साथ ही साथ यह इल्ड को भी बहुत ही अधिक मात्रा में बढ़ा देता है। तो ये था फ्यूजेरियम विल्ट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट बैक्टीरियल विल्ट। बैक्टीरियल विल्ट जैसे कि एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, और यह राल्स्टोनिया सोलनेसियम के थ्रू ही कॉज होता है।
सो पहले हम इसका सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स देखने के लिए हम देखेंगे, सिम्टम्स पहले देख लेते हैं इस डिसीज़ के बारे में। और साथ ही साथ ये जो डिसीज़ होता है वो बहुत ही सीरियस डिसीज़ है टमाटो के फील्ड में, क्योंकि इसके रिलेटिव हाई सॉइल, जो सॉइल मॉइस्चर होते हैं और सॉइल टेम्परेचर होते हैं, उस डिसीज़ को डेवलप करने में बहुत ही अधिक मात्रा में हेल्प करते हैं। सो इस डिसीज़ में क्या होता है, जो उसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है उसमें बैक्टीरिया फील्ड में एक बार इन्फेक्ट हो जाने की बहुत ही रैपिड या फिर बहुत ही जल्दी ग्रोथ करता है और प्लांट को पूरी तरह से विल्ट उसमें कर देता है। रोग के लक्षण किसी भी उम्र के पौधे पर प्रदर्शित हो सकते हैं, और मीन्स यह कि प्लांट के किसी भी अवस्था में किसी भी फेज़ में यह डिसीज़ आ सकता है। सबसे पहले जो डिसीज़ होता है वह प्लांट के नीचे की पत्तियों में स्टार्ट होता है, और नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो पीली होकर मुरझाने लगती हैं, और कुछ ही समय में ऐसे पौधे हरे के हरे ही रहकर ही मुरझा जाते हैं। कभी कभी पत्तियां पीली ही नहीं पड़ती, जिससे हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि उसमें विल्टिंग है, तो इसलिए वो हरे की हरी अवस्था में मुरझा जाते हैं। पौधा हरा का हरा ही मुरझा जाता है, और रोग डिसीज़ के ये लक्षण 7 से 8 घंटे के अंदर में ही दिखाई देने लगते हैं, यानी कि इन्फेक्शन के 7 से 8 घंटे के अंदर ही क्योंकि यह बहुत ही रैपिडली स्प्रेड होता है, तो 7 से 8 घंटे में ही इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगर हम शाम के किसी पौधे को अगर अगर किसी प्लांट में या इस डिसीज़ का इन्फेक्शन हो जाता है, तो जो इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर हमने उसे शाम को स्वस्थ देखा होगा, तो वह सुबह तक पूरा का पूरा मुरझाया हुआ हो सकता है। यानी कि ये जो पैथोजन है, यह जो बैक्टीरिया है, यह बहुत ही तीव्रता से, बहुत ही रैपिड रूप से, बहुत रैपिड फॉर्म लेके प्लांट के इंटरनल पार्ट्स में बहुत ही बढ़ता जाता है, जिससे कुछ ही घंटों में ही जो प्लांट का वाटर है और जो न्यूट्रिएंट है वो पत्तियों से पहुंचने में पहुंचाने वाले जो टिश्यूज़ होते हैं, जो वेसल्स होते हैं, उनमें बाधा पड़ जाती है और पौधे उसमें ब्लॉकिंग हो जाती है, जिससे जो पौधे होते हैं वो 7 से 8 घंटों में ही मुरझाए रहते हैं। सो इस तरह से जो मुरझाए हुए पौधे यानी कि विल्टेड प्लांट है, इस रोग की सबसे प्रमुख पहचान होती है। अगर हम जितने भी इन्फेक्टेड प्लांट है, अगर हम इन्हें जड़ को यदि हम ब्लेड से काट कर अगर किसी साफ वाटर पानी के ग्लास में, किसी कांच के ग्लास में हम डालेंगे, तो इस बैक्टीरिया का हम ऊजनिंग को देख सकते हैं। यानी कि हम बहुत ही क्लियरली हम अगर जब जड़ को डालेंगे तो उसमें वाइट कलर का लिक्विड रिलीज होता हुआ हमें दिखाई देगा, जो कि इस बैक्टीरिया के ऊज होते हैं। तो ये था इस डिसीज़ का सिम्टम। अब डिसीज़ के सिम्टम्स के बाद में हम उसका डिस्कशन करेंगे इटियोलॉजी। जैसे कि यह जो डिसीज़ है वह एक बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होता है, जिसका नाम है राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम। सो यह राल्स्टोनिया सोलेनेसिरम एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, जिसका कि शेप रॉड शेप का होता है, और यह एक एरोबिक बैक्टीरियम है, और इसका जो साइज़ होता है वह 0.5 to 0.7 इंटू 1.5 to 2.0 माइक्रोमीटर का होता है, और यह डेसिकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और इसको यह कल्चर में इनिबिट होता है अगर लो कंसनट्रेशन 0.2% सोडियम क्लोराइड का जो कंसनट्रेशन हो वो 2% होता है, तो इसमें इनिबिट हो सकता है। सो इस तरह से ये इसकी ईटियोलॉजी है। देन हम देखते हैं अब इस डिसीज़ की इस पैथोजन की डिसीज़ साइकिल। सो डिसीज साइकिल में हम जो ये पैथोजन होता है, ये सॉइल बाइन एंड वाटरबोर्न पैथोजन होता है, और यह बैक्टीरिया वेरियस पीरियड ऑफ टाइम में भी सर्वाइव कर सकता है, सॉइल में भी और वाटर में, जो कि बहुत ही इसका रिजर्वायर होता है सोर्स ऑफ इनाकुलम का। तो जो बैक्टीरिया होता है वो यूजुअली टमाटो के प्लांट को रूट्स के थ्रू इन्फेक्ट करता है, रूट्स में वुंड्स के थ्रू या फिर लेटरल रूट्स के थ्रू वो प्लांट में एंटर कर जाता है, जो कि उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनाकुलम है। यानी कि अगर यह जो पैथोजन है वो मोस्टली सॉइल में ही सर्वाइव करते हैं, और जिसका प्राइमरी इनाकुलम है वो सोर्स ऑफ इनाकुलम है वह रूट्स के थ्रू
पैथोजन के एंट्री करने से हो रहा है। ये एंट्री पॉइंट या तो रूट्स भी हो सकता है या फिर आपके वुड्स भी हो सकते हैं। तो ये था इसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनोकुलम। अब जो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनोकुलम है वो बैक्टीरिया के रूट्स, बैक्टीरिया के मूवमेंट से होता है, जो कि मोस्टली अगर जो रूट्स अगर जो इन्फेक्टेड प्लांट के पास के कोई हेल्दी प्लांट है तो उन हेल्दी प्लांट्स तक पहुंचने के लिए बैक्टीरिया या तो वाटर के थ्रू ट्रैवल करके जा सकता है। मोस्टली यह हेल्दी प्लांट्स में इरिगेशन प्रैक्टिसेस के थ्रू ही इन्फेक्टेड प्लांट टू हेल्दी प्लांट तक प्रोग्रेस करता है। तो ये था राल्सटोलिया सोलने सीरम का डिसीज साइकिल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका मैनेजमेंट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बैक्टीरिया का जो आप लाइफ साइकिल में देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्लांट में एंटर करता है और प्लांट को इन्फेक्ट करता है एंड डैमेज करता है। सो नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम क्रॉप रोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम काउ मेज एंड कैबेज, ओकरा, काउपी, मेज़ एंड देन मेज़, काउपी, मेज़ और इस तरह से, और फिंगर मिलेट, एग प्लांट, इसे हम क्रॉप रोटेशन के रूप में, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्रॉप रोटेशन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि टमाटो में बैक्टीरियल विल्ट को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ हमें सीडलिंग्स में ट्रांसप्लांटिंग के समय हमें उसे डैमेज होने से अवॉइड करना है, क्योंकि बैक्टीरिया का किसी भी तरह का कोई भी बैक्टीरिया में कोई भी पेंट्रेशन ऑर्गन तो होते नहीं है, तो ऑब्वियसली वह डैमेज के थ्रू ही जाएगा। तो हमें अगर हम सीडलिंग में किसी तरह का डैमेज किए बिना हम उसे बहुत ही अच्छे रूप से ट्रांसप्लांट कर देते हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो प्लांट में एंटर नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ हम फील्ड में ब्लीचिंग पाउडर अप्लाई कर सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के लिए इस तरह के इन्फेक्टेड सॉइल में हम ब्लीचिंग पाउडर को 10 kg पर हेक्टेयर के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसके पॉपुलेशन को रिड्यूस कर देता है। साथ ही साथ हमें इरिगेशन वाटर का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें उतनी वाटर का यूज़ करना है जो कि एसेंशियल है प्लांट के लिए, और ओवर इरिगेशन को हमें पूरी तरह से कम्प्लीटली इग्नोर करना। साथ ही साथ हमें हमेशा वेल ड्रेनेज व्यवस्था का यूज़ करना है, और जो फील्ड्स होते हैं उन्हें हमेशा लो लेइंग एरिया में हमें नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि लो लेइंग एरिया में वाटर लॉगिंग समस्या सबसे ज़्यादा देखी जाती है। साथ ही साथ हम वीट कंट्रोल कर सकते हैं टमाटो फील्ड्स के आसपास और इरिगेशन पॉन्ड्स में भी, और हमेशा हमें ऐसे वाटर सोर्स का यूज़ करना है जो कि स्वस्थ हो, या फिर हमें उसमें हम इस तरह के वाटर को ब्लीचिंग पाउडर में पहले ब्लीचिंग पाउडर डाल सकते हैं, और उसके बाद हम इस तरह के सॉइल को हम यूज़ कर सकते हैं, सॉरी इस तरह की वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन के लिए। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट। आज हमने टमाटो के कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज़ के बारे में देखा, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ एंड विल्ट, एंड नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे टमाटो का अर्ली ब्लाइट एंड लेट ब्लाइट। हो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।